میں نے اکثریت میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت سے مدارس کا جائزہ لیا. کوئی جگہ 95%، 95%، کوئی جگہ 90%. علماء جو ہے قرآن سے ناشنا ہیں، قرآن کا ترجمہ سمجھتے ہی نہیں، معنی کو ہی نہیں سمجھتے ہیں. اصل مقصد تو اللہ نے اس دنیا میں قرآن دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. ہم قرآن کو کیوں سمجھ نہیں پاتے؟ 12 سال پڑھ کے، 14 سال پڑھ کے قرآن سے ہم کیوں دور ہے؟ عام آدمی ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ کے وہاں بچ سکتا ہے، اور ہم علماء کرام اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائی، یہ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے. کلام اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کو اگر ہم بچوں کو نہیں سمجھائیں گے، صرف اور نحو اگر آپ کا مضبوط نہیں ہوگا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. میں نے مفتی مجاہد صاحب کو کہا میں نے 90% اگر قرآن میں اعلیٰ نمبر نہیں آئے گا تو ان کو انعام بھی نہیں دیا جائے، ان کو پاس بھی نہیں کیا جائے. اصل مقصد تو قرآن ہے، اللہ کے نبی صاحب قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا. قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو حدیث بھی نہیں سمجھ پائیں گے آپ. اور آج بدقسمتی کی بات ہے، علماء کرام قرآن سے دور ہے. جب جماعت میں کتاب بانٹا جاتا ہے، سب سے جو کمزور استاد ہوں گے ان کو کہا جائے گا بھائی ایک کام کیجئے، یہ فلاں استاد کو یہ قرآن ترجمہ پڑھا لیجئے گا. سب سے زیادہ علماء اگر کوتاہی کیا، جب علماء کوتاہی کر رہے تو قرآن کے ساتھ غفلتی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، میرے علماء کرام، میں ایک بات کہنا چاہوں گا. اگر 10 سال 12 سال ہم مدرسہ میں بچوں کو پڑھانے کے بعد قرآن نہیں سمجھا پائیں گے، مسجد کی امام نماز پڑھانے مسجد میں جاتے ہیں، نماز کے اللہ کے سامنے اللہ کے حضور میں قرآن پڑھ کے 12 سال پڑھ کے کیا کہہ رہے اس کو خود کو پتہ نہیں ہوتا ہے. اس کا سب سے زیادہ وبال کس کو پر آئے گا پتہ ہے؟ استادوں کو پر آئے گا. اس کا مطلب ہم میں کمیاں ہیں. اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے اتق اللہ اینما کنت، اتق اللہ حیثما کنت، اتق المحارم تکن اعبد الناس. علماء کرام کو جب تک، عوام کو جب تک ہم جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا پڑھانا ہر چیز اللہ کے لیے ہو، اور جو میں جو کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ جانتا ہے، انسان کوئی غفلت نہیں کر سکتا ہے. قرآن پڑھا، مدرسہ میں آیا، میری ذمہ داری ہے مدرسہ کو پڑھانا، بچوں کو پڑھانا، کیونکہ قیامت کے دن مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا. مجھے بچوں کو صحیح تربیت دینا ہے، قیامت کے دن مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا. مجھے گھنٹے میں کوتاہی نہیں کرنا ہے. آپ اگر اس سوچ میں مدرسے میں آئیں گے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا رہا ہوں، یقین مانیں کہ زندگی بھر جب تک پڑھاتے رہیں گے آپ کی عبادت میں اعمال نامہ ثواب لکھا جائے گا. یہ عبادت ہے. اور آج بہت سے علماء، میں معافی چاہوں گا، غفلت کے شکار اس میں. وجہ کیا ہے؟ جس وجہ سے اگر قرآن سے اگر ہم دور ہو جائیں گے، اللہ کی پکڑ آج بہت جلد آنے والی ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم قرآن سے دور ہو گئے. میں بہت سے مدارس کے نام نہیں لوں گا، بیچ میں سرکاری کئی ہزار مدارس، 700 مدارس قرآن کے ساتھ جو بے حرمتی، قرآن کو جیسے پڑھانا چاہیے تھا، جو امانت کے طور پر نہیں پڑھایا گیا، بند کرنے والا تو کوئی ذریعہ ہوتا ہے، مگر اللہ کی ناراضگی ہے. میں کہوں گا آج اگر ہمارے قومی مدارس کے علماء قرآن سے دور ہو گئے، یہ دین دور نہیں کہ اللہ کی ناراضگی کے سامنے کبھی بھی آ سکتا ہے. میں آپ حضرات سے میری گزارش ہے، قرآن کو سینے میں لگائیے. میں دارالعلوم دیوبند کے استاد مولانا اعجاز رحمۃ اللہ کے واقعہ سناتا ہوں کہ تقوی جب تک نہیں آئے گا آپ کے اندر میں، اللہ کی خوف نہیں آئے گا جب تک، تب تک اچھا سے آپ تدریس پڑھا بھی نہیں سکتے، اور آپ کا پڑھانے میں جو اثر بھی ہوگا وہ بھی اثر پورا نہیں ہوگا. جب تک آپ اتق المحارم تکن اعبد الناس، جب آپ تقوی حرام سے بچ جائیں گے آپ عابدوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا. کب ہوگا بتائیں؟ دارالعلوم دیوبند کے استاد
مولانا اعجاز रहमतुल्लाह का वाकया है, मैं मदीनतुल मुनव्वरा में गया था, वहां पे मौलाना अब्दुल रऊफ गजनवी साहब मेरे उस्ताद भी थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। इन्होंने मुझे किताब, खुद अरबी में किताब लिखा, मुझे पढ़ के सुनाया मस्जिद हरम के अंदर में, कि वो हमेशा अपने घर से मतबख में जब आते थे, मदरसा पढ़ाने आते थे, तो एक टिफिन लाया करते थे। उस टिफिन को मतबख के पास रख देते थे, उस मतबख से उसके जो आग की जो भाप है उस टिफिन में लगता था और ये गर्म रहता था, रोगन जमता नहीं था। और रोगन नहीं जमने की वजह से उस सालन को अच्छा से खाते थे, साल में हिसाब करके इसका पैसा अदा करते थे। तकवा मौलाना मरगूर रहमान रहमतुल्लाह अलैह का वाकया मैं खुद पढ़ा। दारुल देवबंद के मुहतमिम भी थे, बोर्डिंग में कभी कभी जाके मदरसा का खाना कैसा जायका हुआ, खाना ठीक है या नहीं है, अपने जबान में चखते थे, साल में हिसाब करके पैसा दे देते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वाकया सुनिए आप लोग। एक आदमी आके इनको कहने लगा कि मेरा बकरी चोरी हो गया, बकरी चोरी हो गया। पूछा कितना साल इसका है, 2 साल है या 2.5 साल। इनको जो समझाना था समझा के सब्र करो। वो आदमी चला गया, आसपास के लोगों को पूछा गया कि भाई एक बकरी का उम्र कितना होता है। कहा कि भाई इतना उम्र होता है। इतने साल तक कसे खाने से कभी बकरी का गोश्त नहीं खाए। खुदा ना खास्ता कोई चोरी का सामान मेरे हलक में घुस ना जाए। मैं इल्म दिल तदरीस दे रहा हूं, मैं किताब लिख रहा हूं। अबू हनीफा ऐसे नहीं बने, बड़े बड़े अकाबिर ऐसे नहीं बने। उनके बाद बच्चे पढ़ के उनका तरबियत से, उनका अदब से, उनका तरबियत से बच्चे आलिम हो जाते थे। और आज हमारे अंदर में जब तक ये तकवा अख्तियार हम नहीं करेंगे, अल्लाह की खौफ नहीं आएगा, तब तक हम बाअमल आलिम भी नहीं बन सकते, अब बच्चों को सही तदरीस भी नहीं दे सकते। मेरे उलमाए कराम, अल्लाह के वास्ते जो मदरसा है, जो जिम्मेदारान है, सिर्फ तभी पढ़ाते कोई बात नहीं है। अगर आप सिर्फ मजबूत से पढ़ाएंगे, जामिया जलालिया हो, जयनगर हो या मेथी गांव हो या फला शिवपुर मदरसा में भी मेरा हदीस है, जहां आएंगे तो उस्तादों को ऐसा लगना चाहिए कि फला मदरसा के बच्चे सिर्फ पढ़ के आएंगे तो इंशाअल्लाह, जैसे दारुल देवबंद में कहा जाता है, जामिया जलालिया का मदरसा आसाम से आते हैं, माशाअल्लाह हमारे यहाँ आला नंबर लाते हैं। जामिया जलालिया के उस्तादों को, शिवपुर के उस्तादों को, जयनगर के उस्तादों को, मेथी गांव के उस्तादों को, जहां जहां दौरा हदीस से मसादादा को लगना चाहिए कि फला मदरसा से बच्चे सिर्फ और न पढ़ के आए, हमें इनको दाखिला देना है। अगर सिर्फ ना मजबूत हो जाएगा, आप यकीन मानेंगे ये बच्चा आगे जाकर कुरान भी समझ पाएगा, अदब भी समझ पाएगा, हदीस भी समझ पाएगा। सिर्फ नो कमजोर तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो जिस वजह से आप सिर्फ पढ़ा रहे तो इसका मतलब है आप कुरान सिखाने के लिए पढ़ा रहे, इस वजह से पढ़ाइए ताकि ये आलिम बने और कुरान को समझ के पढ़े। और मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि जब तक उलमाए कराम अपनी जिम्मेदारी जहां जहां मदरसा में मुहतमिम से लेके हर मदरसे का अदना फर्द जो आलिम दीन है अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे इंशाअल्लाह। मैं कहता हूं, और हमने एक निसाब भी तैयार किया। मैं दारुल देवबंद से लेके तमाम असातिज़ा को मैंने खुद भेजा कि मदरसा के जो निसाब है हम इसको तब्दील तो कर नहीं सकते हैं, दारुल देवबंद का निसाब है, तो नीचे के सतह पर हम सर्फ और नहव को अगर हम हमारे जबान, जैसे आसामी जबान हमारा है, किसी का बंगाली जबान है, महमूद सिंह की जबान है, कम से कम इस जबान में हम अगर सर्फ और नहव को समझ के, क्योंकि हमारे आसाम के बच्चों को उर्दू सिखाना पड़ता है, इसके बाद इनको फारसी में आपका नहव ये ग्रामर है, तो उनके लिए बड़ी दुश्वारियां होती है। हम लोगों ने यहिया उल उलूम अल कुरान का एक ग्रुप बना के पूरा हिंदुस्तान में बड़े बड़े उलमा को चुन के हम लोगों ने एक निसाब तैयार किया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह, मौलाना अरशद भाई साहब दामद बरकातुहू से मेरी बात भी हुई है, और बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो अगर दारुल देवबंद में फैसला लिया जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये निसाब अगर कुछ तरमीम करेंगे, निसाब तो नहीं बदल सकते, कुछ तरमीम किया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत फायदा होगा। और हमारे हजरत मौलाना हमारे उस्ताद है हजरत शौकत साहब दारुल देवबंद के उस्ताद हदीस भी है, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा इस पर आप जरा जोर देंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा अल्लाह ने चाहा तो। और ये निसाब आपके पास हमने भेज भी दिया था, अगर आप फरमाएंगे हम दोबारा भी दे देंगे आपको इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हजरत एक बात कहता हूँ कि हम आसाम में देखते हैं दारुल देवबंद में जो बच्चे जाते
चुनिंदे बच्चे जाते हैं पढ़ के। जो अच्छे बच्चे अच्छा معیار के तालीम में जाता है, असम या बंगाल में या बिहार में जो बच्चे रह जाते हैं, अक्सर बच्चे कुरान से या उस معیار के नहीं होते हैं। तो हमें इसका सामना करना पड़ता है। हम ये समझते हैं कि भाई कुरान पढ़ लिया, कुरान पढ़ना जानता है, तिलावत अच्छा कर, इमामती में लग जाओ। नहीं, आज आवामुन नास मदरसे के उस्ताद से ज्यादा मस्जिद की इमाम के बात सुनते हैं। खुदा ना खास्ता इमाम अगर कुरान नहीं जानता है, पढ़ सकता है, जिक्र नहीं जानता है, कुरान की मानी नहीं जानता है, अवाम को क्या सिखाएगा वो? इसलिए मदारिस की जिम्मेदारी है ताकि कुरान को सही समझा के मानी के साथ, तफसीर के साथ, हदीस को पढ़ा के अगर हम इनको उलमा बनाएंगे तो मदारिस में जाएंगे, मकातिब में जाएंगे, मकातिब में जाएंगे या मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे तो ये दीन की दावत दे सकते हैं। अवाम के सामने कुरान की तफसीर करके पढ़ा सकते हैं। बेचारे को कुरान पता नहीं तो कहां से तफसीर करेगा? कहने के लिए बहुत कुछ है, अंदर में दिल में तड़प है। मैं मेरी जिंदगी को मैं अपने आप, मैं मदरसे के में तालिब इल्म था, मैंने कुरान में मेरी बहुत गफलती हुई है। वल्लाहि लाजिम घंटे में नहीं बैठता था, अफसोस हुआ, रोता था, गिड़गिड़ाता था कि अल्लाह को मैं क्या जवाब दूं। मैंने मेरे आखिरत का नजात का जरिया बनाने का अल्लाह से दुआ मांगा कि मैं क्या कर सकता हूं। पहले मैंने कुरान को पढ़ना, तफसीर पढ़ना शुरू किया। 3 साल से मसलसल हर रोज फजर के बाद, कभी सफर में रहता हूं, कभी नागा हो जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज कुरान तर्जुमा तफसीर मैं घर पे बैठ के पढ़ता हूं, सिर्फ अल्लाह को जवाब देने के लिए। और इस मेहनत को मैं पूरी हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में आम करने के लिए कोशिश भी कर रहा हूं, ताकि हर उलमा कलामुल्लाह को अपने हाथ में लेके आगे बढ़े और हर उलमा का दिल में कुरान हो, तर्जुमा और मानी तफसीर के साथ। इंशाअल्लाह मैं कहता हूं, अगर कुरान को अपने हाथ में ले लिया तो इंशाअल्लाह कभी कोई मुसलमान जलील नहीं हो सकता इंशाअल्लाह ताला। अब कुरान को अगर आपने छोड़ दिया तो अल्लाह की नाराजगी आएगी, हर जगह हम जलील रुसवा होंगे। मेरे भाइयों, मेरे उलमा कराम, मेरे कहने में अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मगर आज हम आज अहद करके उठते हैं। इंशाअल्लाह आप हजरात मुझसे वादा करें कि आज के बाद हम जो बच्चों को तरबियत देंगे, बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चल के, साहबा वाला की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम कुरान की और हदीस की खिदमत करने के लिए और हर बच्चे को कुरान समझा के आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ बढ़ाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।